Good morning students. Welcome to your English grammar class. How are you students? I hope you are fine and doing very well. Students, first of all we will discuss our password as we usually do. Our password is famous. It is a describing word students that describes a noun. Now about using this word to make sentences or frame sentences, I want to tell you that Ashoka was a famous king. Here you can see कि जो किंग है उनके लिए जो फेमस है, यहाँ ये डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया गया है. नाउन क्या है? किंग. अनदर सेंटेंस कैन बी लाइक दैट महात्मा गांधी वाज अ फेमस लीडर. महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध नेता थे. तो नेता जो कि नाउन है वर्ड, उनके लिए प्रसिद्ध का प्रयोग किया गया है. सो यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस लाइक ही इज अ फेमस पेंटर, or Rani is a famous actress, or the Gita is a famous book, the Taj Mahal is a famous monument. So it can be like that. Now students, what we are going to do in our English grammar class today, we will revise our remaining exercise of chapter number 3 that we had started yesterday. The name of our topic is nouns common and proper. I want to tell you students that your Hindi rhyme competition is going to be held on 16th May. आपका हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता 16 मई को होने जा रही है. You have to prepare your poem accordingly. It should be based on themes like Mother's Day, मातृ दिवस, Earth Day, पृथ्वी दिवस, COVID-19, Corona. So prepare your poem well. You will be provided a link and then you have to post your video on that link. So best of luck for your competition students. प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं. Now we are going to revise the remaining exercises of our chapter number 3. So for that just look at the board. Yes students, yesterday we had revised some of exercises of our chapter number 3, nouns common and proper. There were 2 exercises left to be revised. So today we will revise those pending exercises so that our revision of this chapter will be complete. Before we start students, I want to tell you that you don't need to write it down. ये जो हम रिवीजन कर रहे हैं, you don't need to write it down. ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है. This is for discussion only. This is for revision only. And one more thing I want to tell you, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये एक्सरसाइजेस हैं, इसमें जो सेंटेंसेस हैं या कुछ भी वर्ड्स हैं, वो आपकी बुक की एक्सरसाइजेस से मिलते जुलते नहीं हैं. ये हमेशा आपको नए आएंगे. Whether it can be a test or it can be your exam. So if we know the rules, if we know the concept well, then we will be able to solve every thing that is related to the topic. We will do more and more practice of writing like that. So we start with heading would be same. जो exercises की heading है वो same है, but जो अंदर जो matter लिखा हुआ है, जो sentences है वो different है. Here it is written underline the common nouns and circle the proper nouns. यानी हमें common noun को underline करना है और proper noun को circle करना है. So I start with our first sentence, that is Raman lives in a village. Raman गांव में रहता है. So here you can see Raman is a proper noun because it is the name of a person, special name जो कि दिया गया है, और village क्या है? गांव. But ये क्या है? Common noun. So Raman is a proper noun and village is a common noun in this sentence. Now sentence number 2 is a small boy is flying a kite. एक छोटा लड़का या बालक एक पतंग उड़ा रहा है. Small means छोटा, boy आपको पता है. So boy is a common noun. Is flying मतलब ये doing word है, जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है. Kite क्या है? जो पतंग है, thing, name of a thing. So kite and boy both are common noun
In this sentence we don't have any proper noun. So next is Rani has a parrot named Mithu. रानी के पास एक तोता है जिसका नाम मिठू है. As you can understand clearly कि रानी किसी गर्ल का नेम है, पर्सन का नेम है, स्पेशल नेम है जो, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन. पैरेट क्या है? तोता. वो एक बर्ड है, बट जब बर्ड का नाम दे दिया गया है मिठू, तो ये क्या है? मिठू वर्ड. दिस इज प्रॉपर नाउन. यहाँ बर्ड है, लेकिन बर्ड क्या है? तोता, लेकिन तोते का नाम दिया गया है मिठू, सो दिस इज प्रॉपर नाउन. सो रानी एंड मिठू आर प्रॉपर नाउन एंड पैरेट इज अ कॉमन नाउन in this sentence. Next is Dolls Museum is a famous museum in Delhi. गुड़ियों का अजायब घर एक मशहूर या प्रसिद्ध अजायब घर है दिल्ली में. Students, you must know that Dolls Museum is there in Delhi, जो कि फेमस है. वहाँ डॉल्स का कलेक्शन है. आप कभी भी जाएं तो वहाँ देख सकते हैं. और म्यूजियम क्या होता है? अजायब घर, जहाँ पुरानी और आश्चर्यजनक वंडरफुल चीजें रखी जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, ताकि हम उनको देख सकें और उनके बारे में जान सकें. दिल्ली सिटी का नेम है और दिल्ली हमारी कैपिटल का नेम भी है. इंडिया की कैपिटल का नेम दिल्ली है. फेमस, लाइक दिस इज अवर पासवर्ड. फेमस का मतलब है मशहूर या प्रसिद्ध. सो डॉल्स म्यूजियम है, वो प्रसिद्ध म्यूजियम है दिल्ली में. हेयर यू कैन सी, हेयर दिस वर्ड म्यूजियम इज हेयर एंड म्यूजियम इज रिपीटेड हेयर, बट दिस इज रिटन विद कैपिटल लेटर. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड हेयर फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटल. सो ये इसका साथ में इट इज ज्वाइंट विद दिस वर्ड, तो उसके लिए हमने इसको प्रॉपर नाउन कंसिडर किया है. We have to consider first letter also. जब हम प्रॉपर नाउन चेक कर रहे होते हैं तो फर्स्ट लेटर जो प्रॉपर नाउन का होता है हमेशा कैपिटल होता है. और यहाँ ये कॉमन नाउन के जैसे ट्रीट हो रहा है म्यूजियम वर्ड. सो डॉल्स म्यूजियम एंड दिल्ली आर प्रॉपर नाउन एंड म्यूजियम इज कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज नेहा इज प्लेइंग विथ हर बार्बी डॉल. नेहा है, इट इज द नेम ऑफ अ गर्ल, स्पेशल नेम है, तो नेहा इज प्रॉपर नाउन. नेहा खेल रही है अपनी बार्बी डॉल के साथ. तो डॉल है गुड़िया, डॉल इज अ कॉमन नाउन, बट उस डॉल का नाम दे दिया गया है साथ में उस तरह से कि डॉल का नाम है बार्बी, और ये साथ में इसी तरह से लिखा गया है कॉमास में. सो ये दोनों वर्ड क्या हैं? ज्वाइंटली प्रॉपर नाउन. So Neha is a proper noun and Barbie doll is also proper noun. Next is Raja and Monu are friends. राजा और मोनू दोस्त हैं. फ्रेंड है कॉमन नाउन. मोनू इज अ नेम ऑफ अ पर्सन और राजा भी पर्सन का नेम है. बॉय के नेम हो सकते हैं या मैन के नेम हो सकते हैं. सो दे आर प्रॉपर नाउन. Next is the last one for this exercise is Tapi flows through Surat. Tapi is the name of a river. तापी उस नदी का नाम है जो सूरत के पास से या सूरत में से बहती है. सूरत इज द नेम ऑफ अ सिटी दैट इज इन गुजरात. सिटी का नाम है सूरत, सो दिस इज प्रॉपर नाउन. एंड हियर तापी इज द नेम ऑफ द रिवर, स्पेशल नेम है जो रिवर का, तो तापी इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. सो इन द लास्ट सेंटेंस no common noun is there, but there are two proper nouns, तापी and सूरत. flows मतलब बहना, through मतलब बीच में से गुजरती है. so तापी and सूरत are proper noun. now students, we will move to our next exercise for revision. Yes students, our next exercise is read these sentences, identify the common and proper nouns in them. Then put these in correct columns. Here some sentences are given to us. हमें उनमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना है, और उसके बाद उनको उनके करेक्ट कॉलम में रखना है. करेक्ट कॉलम कौन सा हुआ कि कॉमन नाउन वाले कॉमन नाउन में लिखने हैं कॉलम में,
और प्रॉपर नाउन वाले वर्ड्स प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में लिखने हैं। स्टूडेंट्स, हियर इट इज नॉट रिटन दैट वी हैव टू अंडरलाइन द कॉमन नाउन और सर्कल द प्रॉपर नाउन। आई हैव डन दिस, मैंने ये इसलिए किया है सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर अस व्हेन वी आर सॉर्टिंग और व्हेन वी आर अरेंजिंग देम इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। So, how can you identify which is common noun and which is proper noun? Which word is common noun or which word is proper noun? So, एक easy सा एक पहचान है that a proper noun always starts with a capital letter, कि जो proper noun है वो capital letter से start होता है। Now, I am going to start our exercise. फर्स्ट सेंटेंस इज बाहुबली इज अ फेमस मूवी। बाहुबली एक मशहूर मूवी है, फिल्म है। हिंदी में मूवी का अर्थ है फिल्म। मूवी का जब स्पेशल नेम दे दिया गया बाहुबली, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। ये वर्ड क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बाहुबली मूवी का नाम है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। फेमस मतलब प्रसिद्ध, और फेमस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मूवी को। So Bahubali is proper noun and movie is common noun. So I have written Bahubali in its column, that is the column of proper noun. यहाँ पर लिखा है मैंने, and movie is here into a column of common noun. Next is my dog Tiger was born in July. मेरा डॉग टाइगर जुलाई में बॉर्न हुआ था। सो माई मीन्स मेरा, डॉग मतलब कुत्ता, टाइगर जो डॉग का नाम है वो कब बॉर्न हुआ, कब जन्म लिया उसने? जुलाई में। सो डॉग है कॉमन नाउन, बट डॉग का जो नेम है टाइगर, दैट वर्ड इज प्रॉपर नाउन। और व्हाट इज जुलाई? जुलाई मंथ का नेम है, सो इट इज प्रॉपर नाउन। सो जुलाई एंड टाइगर आर प्रॉपर नाउन एंड डॉग इज कॉमन नाउन. So I have written dog here in common nouns column and tiger and July here into the column of proper noun. Next is Sagar goes to the park every Monday. सागर पार्क में जाता है हर सोमवार को. सागर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, स्पेशल नेम है तो इट इज अ प्रॉपर नाउन. गोज मतलब जाना, पार्क क्या है? जगह जहां जाया जाता है, नेम ऑफ अ प्लेस. सो ये क्या है? कॉमन नाउन. एवरी मतलब हर, मंडे क्या है? डे का नाम. सो डे का स्पेशल नाम है, देयर आर 7 days इन अ वीक, तो डे का स्पेशल नेम क्या है? मंडे. सो मंडे इज अ प्रॉपर नाउन. हियर सागर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉपर नाउन. पार्क एक प्लेस है जो उसका कॉमन नाम है. पार्क का कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया, सो दैट इज व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन. सो आई हैव रिटन सागर हेयर, प्रॉपर नाउन का कॉलम है, मंडे ऑल्सो हेयर एंड पार्क हेयर इन द कॉलम ऑफ कॉमन नाउन. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस दैट वी हैव इज आई लाइक टू ईट वनीला आइसक्रीम. मुझे वनीला आइसक्रीम खाना पसंद है. लाइक है डूइंग वर्ड, ईट भी डूइंग वर्ड है. क्या खाना पसंद है मुझे? वनीला आइसक्रीम. तो आइसक्रीम अगर सिर्फ आइसक्रीम है तो दैट इज कॉमन नाउन, बट यहाँ पर आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो कैपिटल में लिखा गया है, तो हम उन वर्ड्स को देखते हैं जो साथ में आइसक्रीम के लिए यूज किया गया है डिस्क्राइबिंग वर्ड. वनीला आइसक्रीम इज अ प्रॉपर नाउन, और अगर सिंपल आइसक्रीम वर्ड होगा तब वो कॉमन नाउन होगा. सो हियर इन द फोर्थ सेंटेंस देयर इज ओनली वन नाउन, दैट इज वनीला आइसक्रीम, जो कि प्रॉपर नाउन है. So I have written vanilla ice cream here in the column of proper noun. Next is Shimla is on the hills. शिमला पर्वतों पर है. शिमला इज द नेम ऑफ अ सिटी, ये कैपिटल भी है हिमाचल प्रदेश का. सो शिमला इज अ प्रॉपर नाउन. एंड हिल्स क्या है? पहाड़. पहाड़ है, पहाड़ का कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है. सो ये क्या है? कॉमन नाउन. सो हिल्स इज हेयर in the column of common noun and Shimla is here in the column of proper noun.
So this was our revision for chapter number 3 students. I am sure कि आपको समझ में आ गया होगा. I would be very pleased to hear your queries. If you have any query, then you can talk to me, you can call me or send me the message. So now we have completed our chapter number 3 in our book, and we have revised this chapter also. But there is an activity that is given on page number 19. That activity we will do whenever we meet in the class. उसमें हमें क्या करना होगा? I will call 2 students at a time. उन 2 बच्चों को मैं बुलाऊंगी. I will give each one of them a chit, और उस पर एक noun होगा, and दूसरा बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये common है या proper है. So like that we will do our activity. So that will be done whenever we meet in the class. Now that's all for our English class today, students. Do prepare for your Hindi Kavita Path Pratyogita, and also do prepare for your EVS test that is going to be taken on 18th of May. So that's all for our English class today. We will meet in our next class. Till then, bye bye students. Take care. Thank you so much.